درس دیتے رہے, لوگوں خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے, کافروں کو بتاتے رہے دیکھو خدا ایک ہے, وہی ہے سورج کو پیدا کرنے والا, وہی ہے چاند کو پیدا کرنے والا. کبھی قرآن کی ترغیب دیتے رہے, کبھی نماز کا درس دیتے رہے, لیکن کچھ لوگ قبول کر رہے تھے, کچھ لوگ پتھر مار رہے تھے, کچھ لوگ گالی دے رہے تھے, لیکن مصطفیٰ صبر کر رہے تھے. گویا مصطفیٰ اگر اشارہ کر دیتے تو سب کافر چکنا چور ہو جاتے, جتنے پتھر مارنے والے تھے سب ڈھیر ہو جاتے, جتنی گالیاں دینے والے تھے سب ختم ہو جاتے. کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو بہت طاقت دیا ہے, آپ اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑا ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو بہت طاقت دیا ہے, آپ اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے. یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو بہت طاقت دیا ہے کہ آپ اشارہ کرتے ہیں تو درخت آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے. یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو بہت طاقت دیا ہے, اگر آپ اشارہ کرتے ہیں تو کنکری آپ کے اوپر کلمہ پڑھنے لگتی ہے. یا رسول اللہ, اپنے طاقت کا یوز کیجئے, اپنے طاقت کا استعمال کیجئے, اور جتنے پتھر مارنے والے ہیں سب کو ہلاک کر دیجئے نا, سب کو برباد کر دیجئے نا. آقا نے ارشاد فرمایا تھا نہیں, اگر کافروں سے میں بدلہ لے رہا ہوں, پتھر مارنے والوں سے بدلہ لے لوں گا, اگر گالی دینے والوں سے بدلہ لے لوں گا تو پھر امتحان کس بات کی رہ جائے گی, پھر میرا آزمائش کس بات کی رہے گی. اللہ مجھے آزما رہا ہے, اور صبر کرو میرے صحابی, صبر کرو. یہ وہی لوگ ہیں, آج یہ لوگ پتھر مار رہے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ اسی میں سے کوئی ابو بکر بنے گا, کوئی عمر بنے گا, کوئی عثمان بنے گا, کوئی طلحہ بنے گا, کوئی زبیر بنے گا, اور آگے آجا کوئی غریب نواز بنے گا, کوئی غوث اعظم بنے گا, کوئی مخدوم بخاری بنے گا, کوئی وارث پاک بنے گا, کوئی صابر پیا بنے گا. مصطفیٰ نے فرمایا تھا آج یہاں صبر کر لو, اس لیے کہ ظلم کرنے والے ظلم کر کے دنیا خرید رہی ہے, مصطفیٰ نے صبر کر کے جنت خرید ڈالی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا تھا ظلم کرنے والے. ایک مرتبہ پوچھی تھے نا سیدہ فاطمہ, حسنین کی امی کا نام کیا ہے یار, امام حسین کی ماں کا نام کیا ہے, فاطمہ, جانتے ہیں نا فاطمہ, جو حضور کی بیٹی تھی, پیاری بیٹی. جب مصطفیٰ مکے کی گلیوں میں چلتے رہے نا, مکے کی گلیوں سے واپس آتے تو فاطمہ دیکھ رہی تھی ایک دن یار میرے بابا کے کہیں چہرے سے زخم کا خون نکل رہا ہے, کہیں بدن پہ زخم ہے, کہیں سے خون نکل رہا ہے, پورے چہرے سے خون نکل رہا ہے, بدن سے خون نکل رہا ہے, اور مصطفیٰ کے خون بہ کر کے ان کے جوتیوں میں جم جاتا تھا. یہ مصطفیٰ پر لوگوں نے اس طرح ظلم کرتے تھے, لیکن مصطفیٰ کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے تھے, کسی کی بددعائیں نہیں دیتے تھے. یہ مصطفیٰ ہے, وہ جانتے تھے کہ اگر آج ہم بدلہ لے لیں گے تو پھر اسلام ہمیں محبت کا درس دیتا ہے, اسلام ہمیں شانتی کا درس دیتا ہے, اسلام ہمیں پیار کا درس دیتا ہے. مصطفیٰ جب آئے نا گھر میں, فاطمہ دیکھی کہ میرے بابا کی یہ حالات, کہیں چہروں پہ زخم کا نشان ہے, کہیں لوگوں نے پتھر مارا ہے, کہیں لوگوں نے گالیاں دی ہے. مصطفیٰ جب آئے گھر میں, بیٹی گھر کے اندر لے جاتی ہے, کہتی ہے بابا یہ تیرا حال کس نے کر دیا ہے, کسی نے تجھے ایسا پتھر مارا, چہرے پہ تمہارا زخم کا نشان ہو گیا, تمہارے بدن سے خون نکل رہا ہے, اے بابا تم طائف کی گلیوں میں کیوں جاتے ہو. مصطفیٰ نے فرمایا تھا بیٹی کیا کروں, مجھے دین کا کام ہوتا ہے, اللہ مجھے آزما رہا ہے, مجھے دین کا کام کرنا ہوتا ہے, قرآن کی عظمت کو عام کرنا ہوتا ہے, نماز کے وقار کو عام کرنا ہوتا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا تھا بیٹی جانتی ہو اللہ مجھے آزما رہا ہے, اگر آج پتھر مار رہے ہیں لوگ مارنے دے, لیکن ایک مرتبہ بیٹی نے سوال کیا تھا, حسنین کی امی نے سوال کیا تھا, حضور کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ یہ سوال کی تھی, بابا یہ تو بتا کیا قرآن سچا ہے. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بیٹی قرآن سچا ہے. بیٹی عرض کرتی ہے بابا یہ بتا کیا تیرا لایا ہوا نماز سچا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا تھا ہاں بیٹی نماز سچا ہے. بیٹی کہتی ہے بابا یہ بتا کیا مذہب اسلام سچا ہے. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں بیٹی ہمارا مذہب اسلام سچا ہے. پھر بیٹی عرض کرتی ہے بابا اگر تیرا قرآن سچا ہے تو جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے لوگ تجھے پتھر کیوں مارتے ہیں. اگر تیرا نماز سچا ہے جب نماز کی حالت میں رہتا ہے لوگ تمہارے اوپر ظلم و ستم کیوں کرتے ہیں. بیٹی کہتی ہے بابا اگر تیرا اسلام سچا ہے تو جب اسلام کی باتیں کرتا ہے لوگ تجھے پتھر کیوں مارتے ہیں, لوگ گالی کیوں دیتے ہیں. سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے آج رب کی بارگاہ میں فاطمہ شکایت کرے گی, اللہ جب تیرا دیا ہوا قرآن سچا ہے, جب تیرا بھیجا ہوا نماز سچا ہے, جب تیرا دیا ہوا دین سچا ہے, جب مذہب سچا ہے, تو میرا باپ طائف کی گلیوں میں قرآن پڑھتا ہے تو لوگ پتھر کیوں مارتے ہیں, نماز پڑھتا ہے لوگ گالیاں کیوں دیتے ہیں, اسلام کی بات کرتا ہے لوگ پتھر کیوں مارتے ہیں. بیٹی کہتی ہے بابا آج میرا
की बारगाह में शिकायत करूंगी। तब मुस्तफा ने अपनी बेटी के मुंह पे हाथ रख के कहा था, बेटी बद्दुआ ना कर देना, आज सब्र कर लेना, इसलिए कि तेरे बाप को ताइफ वालों ने पत्थर मार करके दुनिया खरीदने की कोशिश कर रही है और तेरा बाप पत्थर की चोट खाकर जन्नत खरीद डाली है। मुस्तफा ने बेटी से कहा था बेटी सब्र कर ले। तो ये है इस्लाम। बड़ी मुश्किलों से हम तक इस्लाम आया है, बड़ी मुश्किलों से हम तक इस्लाम आया है, जिसको आज हम कमाल कर रहे हैं। थोड़ी देर बानी इस्लाम की बात करने की हमें फुर्सत नहीं है। थोड़ी देर जिसने इस्लाम के खातिर पूरे खानदान को कटाया, उसका जिक्र और उसकी बातें हमें सुनने के लिए फुर्सत नहीं है। करबला के बाद हम जी रहे हैं। आज सुख अगर है ना में तो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट सलामत है ना, ये एहसान है करबला वालों का। अगर करबला में अगर अल्लाह ने हमारी जान मांगी तो फिर कितने लोग दे सकते हैं? जो हुजूर के लिए टाइम नहीं दे सकता है यार, वो जान क्या देगा? लेकिन ये जान पूछो ना हसनैन से, हुसैन से पूछो ये जान की कीमत क्या है। हुसैन पैदा हो रहा है ना, जब इंसान हमारे घर में बाल बच्चे पैदा होते हैं ना, तो हमारी मुबारकबादी देने के लिए इलाके की कोई मुखिया आता है, कोई दुखिया आता है, कोई दौलतमंद आता है। लेकिन यार हुसैन की शान देखना, जब हुसैन पैदा हो रहा है तो फरिश्तों का सरदार जिब्रील आ रहा है। हाँ, ये हुसैन की शान है। हुसैन पैदा हो रहा है तो जिब्रील आए। आज बेटों पे हम नाज करते हैं ना, जबकि मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अगर बेटे पैदा हो तो बड़ी खुशी होती है माँ बाप को, चूंकि औलाद की खुशी होनी भी चाहिए। औलाद बड़ी नेमत का नाम है। अगर अल्लाह नेमत दे, अगर आप लोग को मैं जानता हूँ कि वो सुनने और सुनाने लायक आप लोग माहौल नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब भी खत्म करने का दिल करे शिरनी मंगवा दीजिएगा, साहिब खाना से मैं गुजारिश करूंगा। तो हुसैन पैदा हो रहा है तो फरिश्ते मुबारकबादी देने आ रहे हैं। हमारे घर में भी औलादें जब पैदा होती है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, माँ बाप बहुत खुश होते हैं। और ये औलाद की मोहब्बत ही है ना जो आज महफिल रसूल का एहतमाम किए हैं। हाँ, ये औलाद की मोहब्बत ही है। जब पैदा होती है तो हमें और आपको भी खुशी होती है कि मुबारक हो मेरे घर में बेटा पैदा हो गया है। हम मुबारकबादियां देते हैं, यार मुबारक हो मेरे घर में औलादें पैदा हुई है। लेकिन हमने सिर्फ पैदा करना जाना है, हमने सिर्फ बच्चों की वो जन्म करना जाना है, लेकिन नहीं जाना तो हमें अपने बच्चों को अपनी कोटियों में इस्लाम नहीं पिलाया है, अपने बच्चों को इस्लाम की तरगीब नहीं दिया है, अपने बेटों को इस्लाम का वकार नहीं सिखाया है, अपने बेटे को कुरान का तालीम नहीं दिया है। बच्चा पैदा करना आसान है साहिब, लेकिन बच्चों को दीनदार बनाना बड़ी मुश्किल होता है, बच्चे को इंसान बनाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। पैदा तो सब कोई करता है, लेकिन क्या बात है यार, एक बेटा जो नमाज कादी है उसका बेटा, एक बाप जो नमाज कादी है उसका बेटा पैदा हुआ, बचपने से लेकर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, बचपने से सिगरेट और बीड़ी पी रहा है, बचपने से गुटखा पान खा रहा है, बचपने से अब जवान हो रहा है। अरे उसका बाप तो नमाजी है साहिब, लेकिन क्या माजरा हुआ, बेटा पैदा हुआ जवान होकर के शराब का आदी बन जाता है, जुआ का आदी बन जाता है, वो दुनिया का अय्याश बन जाता है। मैं पूछना चाहूंगा इसका रीजन क्या है? तो मैं अपनी घर की बात नहीं करूंगा, किसी मुल्ला की बात नहीं करूंगा, किसी मुफ्ती की बात नहीं करूंगा, अरे किसी वली की भी बात नहीं करूंगा। आजा उस मदीने के ताजदार की बारगाह में, शहंशाह और वजह तखलीक कायनात की बारगाह में, हसनैन के नाना की बारगाह में, फातिमा की बाबा के बारगाह में। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, लोगों अपने बेटे को वफादार बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बेटे को मुस्तफा की मोहब्बत सिखाया जाए, अपने बेटे को मुस्तफा का प्यार सिखाया जाए। लेकिन हमने क्या सिखाया? 4 साल में अगर बेटा गाली देना सीख जाए बाप खुश होता है, मेरा बेटा तोतली जुबान में गाली देने लगा है। अगर बेटा मोबाइल चलाना सीख जाए बाप खुश होता है, मेरा बेटा यूट्यूब निकाल ले रहा है, मेरा बेटा फेसबुक चला ले रहा है। अगर छोटे उम्र में बेटा गाना बजाना सीख जाए माँ बाप फख्र करते हैं, मेरा बेटा गाना बजाना सीख गया है, फिल्म निकालना सीख गया है, सीरियल देखना समझ गया है। लोगों ये नहीं है, मुस्तफा ने फरमाया था मुस्तफा की मोहब्बत सबसे पहले सिखाओ। तो हमें क्या बताना था? बेटे मोबाइल से पहले आना, तुझे जिंदगी में इसलिए भेजा गया। देख मेरे पैगंबर को महबूब, मेरे पैगंबर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, उनके दीवानों की तारीख बता, कभी अबू बकर के इश्क बता, कभी उमर का प्यार बता, खुदा की कसम कभी अली की बहादुरी बता, कभी उस्मान की सखावत बता, अपने बेटे को बता। बेटे अरे दुनिया में कुछ हो या ना हो मुस्तफा से प्यार जरूर होना चाहिए, इसलिए कि ये उसका प्यार है जिसने भी प्यार किया है मुस्तफा से। खुदा की कसम अबू बकर ने किया है मुस्तफा से प्यार, अल्लाह ने सादिक बना दिया। उमर ने मुस्तफा से प्यार किया है, अल्लाह ने आदिल बना दिया। अली ने मुस्तफा से प्यार किया है, अल्लाह ने बहादुर बना दिया। उस्मान ने मुस्तफा से प्यार किया है, अल्लाह ने सखी बना दिया। हुसैन ने मुस्तफा से प्यार किया है, अल्लाह ने शहीद आजम बना दिया। और आगे आजा, गरीब
गरीब नवाज ने मुस्तफा से प्यार किया, अल्लाह ने उसे इनायत का ताज से नवाज दिया। अरे मेरे गौसे आजम ने मुस्तफा से प्यार किया, अल्लाह ने करामत के ताज से नवाज दिया। खुदा की कसम अपने बेटे को बता, देख बेटे हुसैन ने मुस्तफा से प्यार किया तो फिर वो जज्बा मिला, मुस्तफा की मोहब्बत में खानदान लुटा दिया, मगर शिकायत नहीं किया। फिर तेरा बेटा भी जब जवान होगा तो तेरा भी वफादार होगा, मदीने वाले का भी गुलाम होगा। हाँ, अपने बेटे को सबसे पहले मुस्तफा का इश्क सिखाओ, मुस्तफा का प्यार सिखाओ। यही वजह है अगर बेटे हमारे जवान हो जाए ना तो फिर हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। फिर उस वक्त अब माँ बाप परेशान हो जाते हैं, क्या रीजन हुआ यार? एक तो बेटा मन्नतों से मांगने के बाद पैदा हुआ है। हाँ, बे औलाद वाले को दर दर पे आपने भटकते भी देखा होगा, कहीं इस मजार पे, कहीं उस मजार पे, कहीं फला मौलाना के पास, कहीं फला बाबा के पास। क्या हुआ मौलाना साहब, ताबीज दे दीजिए ना, शादी के 5 साल हो गए, आज तक औलाद नहीं हुई है। 10 साल होने जा रहे हैं, आज तक कोई औलाद पैदा नहीं हुई है। हमने देखा ऐसा मजारों पे आप जाकर के देखे ना, गरीब नवाज के दहलीज पे जाकर के देखे, वहां लोग मन्नतें मान रहे हैं। गरीब नवाज आपके दरबार में आए हैं ना, कोई औलाद नहीं है, एक औलाद दे दीजिए। गौसे पाक आपके दरबार में आए हैं, कोई औलाद दे दीजिए। बे औलाद वाला दर दर की ठोकरें खा रहा है, औलाद पैदा करने की खातिर दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन वही औलाद जब जवान हो जाती है, माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं करती है, माँ बाप को सताती है, माँ बाप को गालियां देती है, तब माँ बाप के जिगर पे क्या गुजरता है साहिब? इसका रीजन ये है, हमने औलादे तो मन्नतों में मांगी है, लेकिन कभी ये दुआएं नहीं की थी जिस तरीके से हजरत इब्राहिम ने किया था। हमने कभी ऐसी दुआएं नहीं की थी जिस तरीके से अंबिया ने दुआएं की थी। अंबिया भी दुआ करते रहे, अल्लाह औलाद देना। हमारी दुआएं सिर्फ रहती है औलाद देना, लेकिन अंबिया की दुआएं रहती थी अल्लाह औलाद दे मगर नेक सालेह औलाद अता करना, नेक सालेह औलाद देना। हमने सिर्फ औलाद मांगा है, लेकिन नेक बनाने की कोशिश नहीं किया है। हमने दुनियादार की स्टाइल उसको बताया है, दुनियादार की एक्टिंग उसको बताया है, हमने फिल्मी कल्चर के मुताबिक उसकी जिंदगी बताया है, हमने सीरियल के दाव की तरह उसकी जिंदगी दिया है, जिसके वजह से आज हमारे घर के हालात खराब हो चुके हैं, हमारे बेटों की हालात खराब हो चुके हैं, बेटियां हमारे मुर्तद हो रही है। खुदा की कसम अगर चाहते हो मुआशरे में इनकलाब बरपा हो, अगर चाहते हो तेरा घर जन्नती हो, अगर चाहते हो तेरा बेटा वफादार हो, तो दुनिया के एक्टिंग को एक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि आज दुनिया में नेता बनना बड़ी आसान है, इंसान बनना बड़ा मुश्किल होता है। इंजीनियर बनना बड़ी आसान है, इंसान बनना बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर बनना बड़ा आसान है, लेकिन इंसान बनना बड़ा मुश्किल होता है। अब कौन सी चीज बनाया जाए? इंजीनियर भी है लेकिन बाप का गद्दार हो सकता है, डॉक्टर भी है लेकिन माँ बाप का गद्दार हो सकता है, प्रोफेसर भी है माँ बाप का गद्दार हो सकता है। आखिर बेटे को क्या बनाए कि वो माँ बाप की भी वफादार होगा? तो जो मुस्तफा ने तालीम दिया था उसे अपनाओ। मुस्तफा ने कहा था लोगों सबसे पहले अपने बेटे को मेरा प्यार सिखा दो। अरे जिसके दिल में मुस्तफा का इश्क होता है वो दुनिया वालों के साथ धोखा नहीं करता है, बल्कि वो ये देखता है कि मैं आमना के लाल का गुलाम हूं, फिर किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। मुस्तफा ने कहा था सबसे पहले बेटे को दीनदार बनाए, बेटे को कुरान का कारी बनाए। लेकिन आज कितने लोग हैं? 75% जवान हमारे कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, इस्लाम नहीं जानते हैं। साहिब करबला की बात आप जी रहे हैं, सोचे अगर करबला हमारे ऊपर नाफिज कर दिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे यार? हम तो मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। लेकिन जानते हैं जितने हुसैन के साथ में थे ना, हुसैन भी पैदा हो रहा है यार, बचपना है हुसैन का। हमारी जवानी और हमारे बचपने अगर मैं बात करूं तो आज कितनों का बचपना है, कितने बच्चे हैं आज हमारे 4-5 साल के जिसको मोबाइल नहीं आता होगा। लेकिन अगर कोई सूरत खड़ा करके पूछ दिया जाए कुरान की एक सूरह फातिहा सुनाए तो किसी को याद नहीं होगा। हमने यही सिखाया ना। फिर चाहते हैं मुआशरे में इनकलाब बरपा। हुसैन जब पैदा हो रहा है ना तो मुस्तफा ने क्या पिलाया हुसैन की कुट्ठियों में? हुसैन जब पैदा हो रहे थे मुस्तफा ने गोद में लिया था, कहा लोगों ये मेरा हुसैन है। बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, मोहब्बत से चूम रहे हैं। फरिश्ते मुबारकबादी के लिए आए हैं हुसैन के घराने में, महबूब के घराने में। फरिश्ते आपस में मुबारकबादी दे रहे हैं, मुबारक हो आज महबूब का नवासा पैदा हुआ है, मुबारक हो आज हुसैन पैदा हुआ है। हुसैन की शान देखना, मुस्तफा ने गोद में लिया था, प्यार कर रहे हैं। चूंकि औलाद सबको प्यारी होती है, अगर बेटा पैदा हो तो बाप को प्यारी होती है। हाँ, अगर नवासा पैदा हो तो
नाना को प्यारा होता है। हाँ, जो भी औलादे हो घर वाले को प्यारा ही होता है। मुस्तफा भी प्यार करते करते अचानक रो देते हैं। मुस्तफा जब रो देते हैं आंखों से आंसू आ जाता है। सैयदा फातिमा पूछती है, हसनैन की अम्मी पूछती है, अब्बा जान जब नवासा पैदा होता है नाना को खुशी होती है, जब औलाद पैदा होते हैं घर वाले को खुशी होती है, लेकिन आपने नवासे को चूम भी रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, रोने की वजह क्या है? तब मुस्तफा ने कहा था, बेटी अरे नवासा पैदा होने के बाद तेरा बाप भी खुश है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खुश है, लेकिन रोना इसलिए आ गया कि मैं आने वाली जिंदगी को देख रहा हूँ, आने वाले वक्त को देख रहा हूँ। एक वक्त आएगा जब इस्लाम के वकार को मिटाया जाएगा, कुरान की अजमत पे उंगलियां उठाई जाएगी, जब नमाज की अजमत को खत्म किया जाएगा, दुनिया से इस्लाम मिटाया जाएगा, तब यही मेरा नवासा उठेगा, करबला के मैदान में जाएगा और अपना 71 खानदान भी देगा, अपना गर्दन भी कटाएगा। और देखो सबको खिला पिला कर मारा जाता है, लेकिन मेरे हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा, 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद किया जाएगा। बस यही ख्याल ने मुस्तफा को रुला दिया है। लोगों गोया मुस्तफा जानते हैं जो मेरा नवासा पैदा हुआ है इसे करबला में शहीद होना है। फातिमा जानती है जो मेरा बेटा पैदा हुआ है इसे करबला में शहीद होना है। अली जानते हैं जो मेरा बेटा पैदा हुआ है इसे करबला में शहीद होना है। लेकिन परवरिश हो रही है यार, हमारी परवरिश किस तरह होती है? आज अपने बेटों की परवरिश किस तरह होती है? आज अपने मुआशरे का जायजा ले, हम बेटे को किस तरह पालते हैं? बेटा मेरा बड़ा हो रहा है, 4 साल की उम्र हो गया, हमने मोबाइल भी सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया। और किस तरह पैदा होती है? जब औलादे जवान हो जाती है, माँ हाथों में मोबाइल देख करके खाना बनाती है, माँ कभी उसे गाना बजा कर देख करके खाना बनाने जाती है। लेकिन देखना फातिमा हुसैन की परवरिश कर रही है, कभी कुरान की आयतें हुसैन को सुना रही है, कभी लोरियां सुना रही है। खुदा की कसम अली भी मोहब्बत से पाल रहे हैं, मुस्तफा भी कांधों पर घुमा रहे हैं, हुसैन को पाल रहे हैं, जबकि सबको पता था हुसैन एक दिन करबला के मैदान में शहीद हो जाएगा। साहिब ये हुसैन की परवरिश हो रही है। आज दुनिया भी अपने बेटे को पालती है इस ख्याल के साथ कि मेरा बेटा जब जवान होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज बाप इस ख्याल के साथ बेटों को पालते हैं, मेरा बेटा जब जवान होगा ज्यादा पैसा कमा करके देगा। हमने बेटे को बैठा कर बताते भी हैं, बेटे बैठना देखना फला के पास कितनी दौलत है। अब वो बेटे के जहन में समा जाती है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज दौलत को कहा जाता है। हमने बेटे को बैठा करके बताया, बेटा बैठना देख फला के पास जमीन कितनी है, उससे ज्यादा जमीन तुझे इकट्ठा करना है। बस मेरे बेटों के जहन फिक्र में ये समा गया कि दुनिया में जमीन ही बड़ी चीज है। अपने बेटों को बैठा कर हमने मकान दिखा दिया, बेटे देख फला का मकान कितना ऊंचा है। अब बेटे को बात समझ में आ गई कि दुनिया में बड़ा कामयाब वही है जिसका ऊंचा मकान होता है। लेकिन कभी नहीं बताया अपने बेटे को, बेटे इस्लाम के खातिर अबू बकर ने कौन सा रोल निभाया था, बेटे इस्लाम के खातिर उमर ने कौन सा रोल निभाया था, बेटे इस्लाम के खातिर अली ने किस तरह की बहादुरी दिखाई थी, बेटे इस्लाम के खातिर उस्मान ने किस तरीके का रोल निभाया था। काश अपने बेटे को बता देते। आना फातिमा हुसैन को पाल रही है, सारी दुनिया बेटों को पालते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन फातिमा हुसैन को पाल रही है, उसको दूध पिला रही है, खून जिगर पिला रही है और कह रही है बेटे अपने फायदे के लिए हुसैन को नहीं पाला जा रहा है, अब अली के फायदे के लिए हुसैन को नहीं पाला जा रहा है, हुसैन को दौलत के लिए नहीं पाला जा रहा है, जमीन के लिए नहीं पाला जा रहा है, बल्कि माँ कहती है बेटा तुझे आज खूने जिगर पिला रही हूँ, अगर माँ के खून का हक अदा करना चाहते हो तो करबला का एक वक्त आएगा, मेरे बाबा के दीन की अजमत को लूटा जाएगा। हुसैन तुझे आज फातिमा दूध पिला रही है, अरे आप माँ का हक अदा करना चाहते हो तो करबला में जा करके अपना खानदान कटा देना, मगर मेरे बाबा का इस्लाम बचा लेना। फातिमा हुसैन को इस ख्याल के साथ पाल रही है। लेकिन आज हमने बेटे को बड़ा धूमधाम से पालते हैं, जवान करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसका खतना करते हैं। ये खतना की महफिल है ना, खतना की महफिल में बैठे हैं ना यार, कुछ बोलिए आप या खत्म किया जाए। ये रोज नसीब में नहीं आएगी आपको महफिल, और ये वो महफिल है ना कि मुकद्दर वाला ही महबूब की बातें सुनता है यार। हाँ, और हर रोज आपके मुकद्दर में नहीं होंगे ये महफिल है रसूल। कभी कभी किसी ने करा दिया, खाने की दावत दे दिया तो आप आ सकते हैं, हाँ खाने की नियत से ही। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है जो भी जिस नियत से मेरे महबूब की महफिल में बैठ जाता है ना तो अल्लाह सबकी खताओं को माफ फरमा देता है। कितना मेहरबान है अल्लाह यार। लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सा वक्त नहीं दे पा रहे हैं। क्या करेंगे इस दुनिया में, शॉर्ट जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है शायद। कब्र में जाने के बाद आपको पता चल जाएगा रसूल की रिसालत क्या है। कब्र में जाने के बाद पता चल जाएगा आपको हुसैनियत क्या है। बड़े हुसैन के मुहर्रम में हम और आप 10वीं तारीख को, 8वीं तारीख को, 9वीं तारीख को
बड़े हम हुसैन का नाम लिए हैं, उनके नाम पे ताजिया भी बनाए हैं, ढोल ताशे भी पीटे हैं, लेकिन यह हुसैनियत है साहिब? हम ये जानते हैं हुसैन ने पूरा खानदान कटाया। अगर आपके सामने आपको खानदान को काट दिया जाए, आप ढोल बजाए ना, कोई आप बजा पाएगा? हुसैन पूरा खानदान शहीद हुआ करबला के मैदान में, लेकिन आज हम उनके शहादत को ढोल ताशों के बीच में पामाल कर रहे हैं। आज ताजिया घुमा करके उनके शहादत को खत्म कर रहे हैं। खुदा की कसम हुसैन ने यह पैगाम नहीं दिया था। करबला के बाद मौलाना साहब ने बताया हुसैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हुसैन का बेटा है, 35 साल या 40 साल जिंदा रहे थे, लेकिन जानते हो करबला के बाद जिंदा रहे, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 40 साल के बीच में कभी मुस्कुराया भी नहीं था, कभी मुस्कुराया नहीं था। लेकिन आज हम शराब के नशे में धुत हो गए, आज हम जुओं के अड्डों पर बैठ करके आज इस्लाम को पामाल कर रहे हैं, मजहब इस्लाम को हम और आप, जबकि सबसे प्यारा मजहब अल्लाह ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे खूबसूरत अल्लाह के नजदीक मजहब इस्लाम है। यार इस इस्लाम को हम पामाल कर रहे हैं, जिस कुरान की अजमत को हुसैन ने बचाया था उसे पामाल कर रहे हैं, जिस इस्लाम को हुसैन ने 72 कटा करके बचाया था उसे हम खत्म करने में लगे हैं, जिस नमाज की अजमत को हुसैन ने करबला के मैदान में नमाज के वकार को बचाया था। जानते हैं करबला में जब 71 हुसैन का घराना शहीद कर दिया गया, आखिर में हुसैन जा रहा है, आखिर में सबसे लास्ट में हुसैन जा रहा है, हुसैन बच गया था। और हुसैन ही सिर्फ यजीदियों का टारगेट था, यजीदियों का टारगेट कोई और नहीं था, सिर्फ हुसैन था। अगर हुसैन पहले जाकर करबला में सर दे देते ना तो यजीदी 71 को नहीं मारते, सिर्फ टारगेट था यजीदियों का हुसैन। करबला के मैदान में हुसैन चल जा रहे हैं, आखिर वक्त है, सबसे लास्ट में जा रहे हैं, उससे पहले अकबर जवान बेटे अकबर को शहीद कर दिया गया है। 18 साल के जो बाप बेटा देगा ना उसे समझ में आएगा इस्लाम क्या है, हम क्या देते हैं इस्लाम के लिए। ना हमारे पास ना हमारे बदन पे इस्लामिक लिबास है, ना सरों पे टोपियां रखने में 2 मिनट शर्म आती है, हमें इस्लामिक स्टाइल में चलने में हमें शर्म आती है। हम क्या दे सकते हैं इस्लाम के लिए? आना करबला की तारीख पर अपने बेटों को पढ़ा, अरे हर बाप को करबला पढ़ने की जरूरत है, हर बेटों को करबला पढ़ने की जरूरत है। जब पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा यार इस्लाम के खातिर हमने तो अपना लिबास नहीं दे रहे हैं, इस्लाम के खातिर हम सरों की टोपी नहीं दे रहे हैं, इस्लाम के खातिर तो हम टाइम नहीं दे रहे हैं। आना करबला पढ़ेगा तो तुझे पता चलेगा इस्लाम के खातिर किसने क्या दिया है। हुसैन ने इस्लाम के खातिर 6 महीने की असगर को दे दिया है, 18 साल के जवान बेटे अकबर को दे दिया है, औलो मोहम्मद को दे दिया है, कासिम के जिस्म को टुकड़े टुकड़े करवा दिया है, अब्बास अलम बरदार के बासु को कटवा दिया है, अरे औलो मोहम्मद के सर को कटवा दिया है। ये इस्लाम है साहिब, इस्लाम के खातिर उसने अपना जान भी दे दिया है और ऐलान कर दिया है लोगों ये जान भी मिली है तो महबूब के लिए मिली है, और ये जान भी देती हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हो सका। हुसैन ने जान दे दी और कहा ये जान भी दे दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो सका। हम क्या दे रहे हैं इस्लाम के खातिर? क्या हम देंगे? जो टाइम नहीं दे, जो वक्त नहीं दे, जो थोड़ी देर यहाँ बैठने के लिए अब सोचे, इसलिए सोचे कि यार अभी फेसबुक पे फोन आया होगा, व्हाट्सएप चलाना होगा, हाँ मुझे मेरे पास कई कॉल आया होगा, फ्री फायर खेलना होगा, पबजी खेलना होगा। ये सोचे कौन जिस कौम के खातिर 72 घराना शहीद करके तुम्हारे खातिर इस्लाम बचाया गया, महबूब तुम्हारे खातिर ताइफ की गलियों में पत्थर खाते रहे, हमारे लिए मुस्तफा दुआएं करते रहे और काफिरों से गालियां सुनते रहे, लोगों ने उनके पैरों में कांटे बिछाते रहे मगर हमारे खातिर सफर करते रहे, कांटे चुभवाते रहे हमारे खातिर। लेकिन आज हम उनके खातिर कुछ नहीं कर रहे हैं। जानते हैं तेरी दौलत तुझे कब्र में नहीं बचा पाएगी। बड़ा इंजीनियर होगा अपने वक्त का, तेरी इंजीनियरिंग कब्र तक जाते जाते खत्म हो जाएगी। दुनिया तक होगा तो दुनिया का अपने आप का बड़ा रईस होगा, दुनिया का मालदार होगा, दुनिया का बड़ा इंजीनियर होगा, दुनिया का बड़ा प्रोफेसर होगा, दुनिया का बड़ा डॉक्टर होगा। तुम्हारी डॉक्टरियत कब्र से पहले खत्म हो जाएगी, तुम्हारी इंजीनियरिंग कब्र से पहले खत्म हो जाएगी। लेकिन खुदा की कसम कब्र में जब जाओगे ना तो ये तुम्हारे दोस्त दुनिया के काम नहीं आएंगे जिसके वजह से तुमने महबूब की महफिल छोड़ रहे हो। ये तुम्हारा मोबाइल कब्र के साथ में नहीं जाएगा जिसे फोन करके अपने दोस्त को बुला लोगे। तुम्हारे साथ कब्र में कोई रोशनी का इंतजाम नहीं किया जाएगा। जानते हो अगर महबूब की मोहब्बत में मर करके जाओगे तो जब कब्र में जाओगे तो तेरी इंजीनियरिंग काम नहीं आएगी, डॉक्टरियत काम नहीं आएगी, वहां दौलत नहीं बचा पाएगी। हजरत अली ने कब्रिस्तान वालों से पूछा था
قبر والے ذرا یہ تو بتا تیری قبر میں حالات کیا ہے. پھر قبر سے آواز آتی ہے, علی پوچھتے کیا ہو؟ ارے میں تو دنیا میں تھا, دنیا میں ہمارے پاس دولت تھی, زمین تھی, اونچا مکان تھا, دو چار لوگ ہمیں سلام کرتے تھے, دنیا میں ہماری عزتیں تھی. علی قبر کی حالات کیا پوچھتے ہو؟ یہاں بتا دو دنیا والوں سے کہ زمین کا سکہ نہیں چلتا ہے, قبر میں دولت کا سکہ نہیں چلتا ہے, قبر میں انجینئرنگ کا سکہ نہیں چلتا ہے, قبر میں ڈاکٹریت نہیں چلتی ہے. علی دنیا والے کو بتا دو کہ قبر میں دولت کا سکہ نہیں چلے گا. اگر قبر میں چلے گا تو آمنہ کے لال کے محبت کا سکہ چلے گا. جس کے دل میں آمنہ کے لال کا پیار ہوگا وہ دنیا میں بھی عزتدار ہوگا, قبر میں بھی عزتدار ہوگا. یہ ہے قبر. کہاں جاؤ گے؟ نہیں بچ پاؤ گے. آج مولوی کو گالی دے رہے ہو, آج تم مولوی کو برا بھلا کہہ رہے ہو. کل وقت آ لینے دے, محبوب کے بغیر اشارے سے کوئی ماں کا لال جنت میں نہیں جائے گا. ہاں, کوئی نہیں جا پائے گا. مولوی اپنے فائدے کے خاطر نہیں بولتا ہے, اپنے باپ کی باتیں نہیں بولتا ہے, جب بھی بولتا ہے تو رسول پاک کی باتیں بولتا ہے. ہاں, مولوی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ہاں, قبر میں جانے کے بعد پتا چلے گا اسلام کیا ہے, رب کی ربوبیت کیا ہے, محبوب کی رسالت کیا ہے, ولیوں کی ولایت کیا ہے. صاحب تو کوشش کرے, اپنے بیٹے کو وفادار بنانا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کا پیار سکھائے, مصطفیٰ کا پیار سکھائے. یہی باتیں ہو رہی تھی نا ہماری, بس ادھر ادھر ہماری باتیں گھوم رہی, لیکن آئے گی اسی بات پہ. مصطفیٰ کا پیار سکھائے. کتنوں نے اپنے بیٹے کو مصطفیٰ کا پیار سکھایا؟ مصطفیٰ کے پیار سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آج ہمارے بیٹے جب بچپنے میں رہتے ہیں تو پھر بچپنے سے لے کر 10 سال تک ہو جاتے ہیں, لیکن ہم نے بیٹوں کو کتنا ٹائم دیا ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کا, اسے قرآن پڑھنے کا کتنا ہم نے سبق دیا ہے. جبکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بیٹا پیدا ہو تو پیدا ہونے کے 7ویں دن بعد, جب آپ کے اولاد پیدا ہو 7ویں دن بعد اس کا بہترین نام رکھو, اس کا ختنہ کراؤ, اس کا عقیقہ کراؤ. مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں صاحب, میں اپنی گھر کی بات نہیں کرتا. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, آزاد بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ویسے اگر آپ ختم کروانا چاہتے ہیں شیرنی منگا لیجیے. ہاں, میں نہیں چاہتا زبردستی بولنا. تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ 7 سال کے 7ویں دن جب اولادیں پیدا ہو جائے, سب کے گھر میں پیدا ہوتی ہے. میرے آقا کے گھر میں حسین پیدا ہو رہے ہیں نا, تو مصطفیٰ نے 7ویں دن حسین کا ختنہ بھی کیا, عقیقہ بھی کیا, حسین کا نام بھی رکھا تھا یار. ہاں, حسین جب پیدا ہوئے نا 7ویں دن مصطفیٰ نے حسین کا ختنہ بھی کروایا, عقیقہ بھی کروایا, حسین کا نام بھی رکھا مصطفیٰ نے 7ویں دن. تو ہمیں فرمایا مصطفیٰ نے, لوگوں جب اولادیں پیدا ہو 7 دن کا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھو. ہم نام کیسا رکھتے ہیں؟ جس طریقے سے فلم میں کسی کا نام ہے نا, فلمی اسٹائل میں آج نام بھی رکھتے ہیں, جبکہ نام کا مرتبہ ہم نہیں جانتے ہیں. ہم کیا سمجھیں گے اسلام کیا ہے؟ مصطفیٰ نے کیوں کہا تھا اچھا نام رکھو؟ ہم کبھی سمجھیں؟ ایک صحابی رسول ہے, اللہ کے صحابی رسول, وہ ایک صحابی رسول محبوب کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, یا رسول اللہ اگر آپ کوئی اچھا نام بتائے نا تو میں اپنے بیٹے کا نام رکھ دوں. آج کتنے لوگ ہیں بیٹے پیدا ہونے کے بعد مولوی سے پوچھنے جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں بیٹے پیدا ہونے کے بعد امام صاحب سے پوچھنے جائیں کہ کوئی اچھا نام رکھے. نہیں, ہم تو صرف فلم دیکھ کر کے اس کا نام اچھا رکھے ہیں. ہم سوچتے ہیں فلم دیکھ کر کے فلموں کے مطابق اس کا نام رکھ دیا جائے, سیریل دیکھ کر کے سیریل کی اداؤں کی طرح اس کا نام رکھ دیا جائے, دنیا کے ایکٹر کو دیکھ کر کے اس کے ایکٹر کے مطابق نام رکھ دیا جائے. ہم نے یہ سوچا ہے صاحب, آؤ دیکھو اسلام کیا ہے. محبوب نے تمہارے خاطر کتنا ٹینشن لے رہے ہیں, محبوب تمہارے خاطر کتنا فکر کر رہے ہیں. محبوب نے جبکہ فرمایا گیا کہ تمہارے اوپر اتنا ماں باپ کا احسان نہیں ہوگا جتنا مدینے والے مصطفیٰ کا احسان ہے. صاحب مصطفیٰ ہمارے خاطر کتنا افسوس کر رہے ہیں, کتنا رو رہے ہیں. صحابی رسول آئے, کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا ہے, آپ کوئی اچھا نام بتا دینا. مصطفیٰ نے کہا تھا جا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دے, جا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دے. اگر آج محلے میں 2 نام ہو جائے نا تو پھر جھگڑا لڑائی رکھا ہے. ہاں آج رکھا ہے, لیکن دیکھیں ہماری صحابہ اکرام کی تاریخیں دیکھیں. حضور کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ, حضور کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ, اور حضور کے بیٹی کے ایک بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا. یار یہ صحابی رسول کا گھرانہ ہے, مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. مصطفیٰ نے کہا جا میرے دیوانے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دے. گیا خوشی سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا. کچھ سالوں کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہو گیا.
दूसरा बेटा पैदा हुआ, दौड़े दौड़े आया आका की बारगाह में, या रसूलल्लाह मेरे घर में दूसरा बेटा भी पैदा हो गया है, अगर अच्छा आप नाम बताए तो अपने दूसरे बेटे का नाम भी कुछ रख दूं। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, जा मेरे दीवाने अपने दूसरे बेटे का नाम भी मोहम्मद रख दे, अपने दूसरे बेटे का नाम भी मोहम्मद रख दे। देखे साहिब, ये दुनिया चंद लम्हे की जिंदगी है, नाम से कुछ नहीं होता है, नामो नमूद से इज्जतें नहीं मिलती है। दुनिया में आप बड़ा हो सकते हैं, उससे इज्जतदार कोई नहीं होता है। आना इज्जत देखना चाहते हैं ना, इज्जत मुस्तफा के प्यार के बुनियाद पे मिलती है यार, मुस्तफा के इश्क के बुनियाद पे इज्जत मिलती है। मुस्तफा का इश्क देखना चाहते हैं ना, तो सबसे काले बिलाल जो मुस्तफा का वो सादी रसूल है ना, काले बिलाल जिसको दुनिया मक्के में गुलाम बना करके रखती थी, कोई इज्जत नहीं करता था, इतने काले थे और होंठ मोटे मोटे, दांत बड़े बड़े, सब कोई नफरत करता था, मक्के वाले गुलाम बना करके रखते थे। लेकिन मुस्तफा ने जब गुजर रहे थे ना, मुस्तफा के किरदार को देखा, मुस्तफा के रफ्तार को देखा, मुस्तफा के आइडियल्स को देखा, मुस्तफा के गुफ्तगू को सुना, मुस्तफा के चेहरे को देखा, बिलाल ने बेसाख्ता पुकार उठा। बिलाल की मदद के लिए मुस्तफा ने बिलाल की चक्की भी चलाए थे, मुस्तफा का काम, मुस्तफा ने बिलाल का काम भी किए थे। जब उनके अदाओं को देखा, उनके किरदार को देखा, उनके रफ्तार को देखा, बिलाल ने कहा था, ऐ महबूब आप यहाँ से ना जाइए, अपना नाम पता भी बता करके जाइए, अपना एड्रेस दे करके भी जाइए। मुस्तफा ने कहा था, बिलाल मुझे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूँ। बिलाल ने कहा था, या रसूलुल्लाह अब अकेले ना जाइए, बिलाल को कलमा पढ़ा दीजिए। मुस्तफा ने कहा था, बिलाल इतनी जल्दी क्या है? बिलाल ने कहा था, या रसूलुल्लाह आपकी अदाओं को मैंने देखा तो कहने पे मजबूर हो गया, आपकी अदाएं ये है कि सुल्फ देखी है, कि नजरों ने फटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। ये मोहम्मद की अदाएं। बिलाल ने इस्लाम कबूल किया, कहा बिलाल टेंशन ना ले, जब महबूब से प्यार कर लिया है, अपने पैगंबर से प्यार कर लिया है, जब खुदा के रसूल से प्यार कर लिया है, तो अब तुझे गुलाम नहीं रखा जाएगा, अब दुनिया वालों के नजर में तुझे बेइज्जत नहीं रखा जाएगा। मुस्तफा तुझे वो इज्जत देगा कि अबू बकर के लाइन में खड़ा करेगा, उस्मान के लाइन में खड़ा करेगा, अरे तलहा के लाइन में खड़ा करेगा, अली के लाइन में खड़ा करेगा। मेरे मुस्तफा ने काले बिलाल को अरे गुलामों के बीच से उठाया, जालिमों के बीच से उठाया, बिलाल को अपने सहाबियों के बीच में खड़ा करके बताया, देख बिलाल इज्जतें दुनिया की दौलतों के बुनियाद पे नहीं